हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग्स इन जावा के बारे में और 3 कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑफ मैथमेटिक्स ओरिजिन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि जावा स्ट्रिंग्स क्या होता है। अ स्ट्रिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि हम डबल कोट्स के अंदर स्टोर करते हैं। पाइथन में ट्रिपल कोट्स और सिंगल कोट में भी होता है, बट इन जावा इट इज ओनली इन डबल कोट्स. It uses UTF encoding 16 and provides methods for handling text data. Each character in a string is stored using 16-bit Unicode UTF-16 encoding. तो फ्रेंड्स, जो encoding टेक्निक यूज होती है इसमें वो UTF-16 है. इसके बाद आता है strings are immutable meaning their value cannot be changed after creation. हम एक string create करने के बाद उसमें कॉन्कैटिनेट या दूसरी चीज़ नहीं कर सकते हैं. हालांकि एक स्ट्रिंग को डिफाइन करने के बाद हम उसी नाम से दूसरा स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं. जावा प्रोवाइड्स अ रिच एपीआई फॉर मैनिपुलेशन, कंपैरिजन एंड कॉन्कैटिनेशन. तो हम अगर हमें कॉन्कैटिनेट करना है या कंपेयर करना है या मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए हम जावा के पास रिच एपीआई है. इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार. पब्लिक क्लास स्ट्रिंग्स, दिस इज द मेन फंक्शन. पब्लिक स्टैटिक void main string args. Creating Java string using a new keyword. String str equal to new string, and in bracket we give strings system.out.println str. तो इससे फ्रेंड्स हमारा ये strings जो है वो प्रिंट हो जाएगा. Ways of creating the Java string. There are two ways to create strings in Java. First of all, we have the string literal, that is the static memory. To make Java more memory efficient, because no new objects are created if it exists in the constant string pool. तो ये जो string str इक्वल टू geeks को geeks हम दे रहे हैं फ्रेंड्स, इससे जो str होता है वो string constant pool में डिफाइन हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट होता है क्योंकि नए ऑब्जेक्ट हमें बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसके बाद है फ्रेंड्स यूजिंग न्यू कीवर्ड. So using the new keyword creates an object in the heap memory even if the same string already exists in the pool. तो new keyword से फ्रेंड्स एक हमारा मेमोरी एलोकेट होगा दूसरा किसी भी ऑब्जेक्ट का. ऑल्दो ये हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट सेम चीज स्टोर कर रहे हो लेकिन उनका मेमोरी में एलोकेशन अलग अलग होगा हीप मेमोरी में. One object is created in the heap memory. The string literal is stored in the string pool. The reference variable points to the heap object and not to the pool. For example, string str equal to new string geeks for geeks. Interfaces and classes and strings in Java. सबसे पहला है character sequence interface. Character sequence interface is used for representing the sequence of characters in Java. तो character sequence interface क्या करता है फ्रेंड्स? ये sequence of characters को Java में represent करने का एक interface है. Classes that are implemented using character sequence interface are mentioned below, and it provides basic methods such as length, char, add, subsequence, and toString. Classes that implement the character sequence include string. String is an immutable class in Java, which means that once a string object is created, its value cannot be changed. If you want to modify a string, a new string object is created and original remains unchanged. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं. इसके बाद आता है स्ट्रिंग बफर. स्ट्रिंग बफर इज अ पीयर क्लास ऑफ स्ट्रिंग्स. इट इज म्यूटेबल. ये म्यूटेबल होता है और थ्रेड सेव भी होता है. It can be used in multi-threaded environments and which is shared among the multiple threads. As it is thread safe, so there is an extra overhead. So it is mainly used for the multi-threaded program. For example, string buffer demo string equal to new string buffer of strings. इसके बाद आता है friends string builder. String builder is an alternative to string and string buffer which creates a mutual mutable sequence of characters and it is not thread safe. It is used only within a thread, so there is no extra overhead. How strings are stored in the memory? String literal. Whenever a string object is created as a literal, the object will be created in the string constant pool. This allows JVM to optimize the initialization of string literal. The string pool constant is present in the heap. For example, string str equal to hello. तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक शॉर्ट ओवरव्यू अबाउट दी स्ट्रिंग्स. अब हम कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रॉम दी कोड शेफ. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे उसका नाम है सेल सीजन. अब ये प्रॉब्लम क्या कहता है? इट्स द सेल सीजन अगेन एंड शेफ बॉट आइटम्स वर्थ ऑफ टोटल x रुपीज. द सेल सीजन इज एज फॉलोज.
If x is less than equal to 100, no discount. If 100 less than x less than 10,000 1000, discount is 25 rupees. If 1000 less than x less than equal to 5000, discount is 100 rupees. And if x is greater than 5000, then discount is 500 rupees. हमें फाइनल अमाउंट निकालना है जो कि शेफ को पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ हिज शॉपिंग. तो इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स ये था हमारा कोड फॉर सेल सीजन. इसको एक बार रन करते हैं. तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स की आउटपुट आ रहा है 15, 70, 225 और 975, जो कि इक्विवेलेंट है हमारा गिवन आउटपुट के. अब एक बार उसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हो चुका है. अब एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स. इसका जो कोड है, इसमें फ्रेंड्स हम तीन चीज इंपोर्ट करेंगे. एक तो आईओ मॉड्यूल, लैंग मॉड्यूल और यूटिलिटी मॉड्यूल. फिर उसके बाद एक क्लास बनाएंगे कोडशेप नाम से. उसका एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्स. स्कैनर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक. फिर उसके बाद टी को टेस्ट केसेस के फॉर्म में हम इसको इनपुट लेंगे.
वाइल टी माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो, मतलब जब तक हमारा टेस्ट केसेस बाकी है तब तक हम सबसे पहले इनपुट लेंगे अमाउंट को, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फाइनल अमाउंट विद द वैल्यू जीरो। अब ये फाइनल अमाउंट विल डिपेंड अपॉन द डिस्काउंट दैट इज गिवन। तो अगर अमाउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है तो फाइनल अमाउंट केवल हमारे अमाउंट के बराबर होगा। अगर अमाउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है एंड लेस देन इक्वल टू 1000 है तो फाइनल अमाउंट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस 25। else if amount is greater than 1000 and less than equal to 5000 so final amount equal to amount minus 100। else if amount is greater than 5000 फाइनल अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस 500। इसके बाद हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है शेफलैंड एंड गेम्स। इन अ शेफलैंड अ टेनिस गेम इन्वॉल्व्स 4 referees। Each referee has to point out whether he considers the balls to be inside the limit or outside the limit. The ball is to be considered to be in if and only if all the referees again agree that it was inside the limits. Given the decision of 4 referees, help chef determine whether the ball is considered in the inside limits or not। तो इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कोड। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। आउट इन आउट आउट, आउट इन आउट आउट, इसको एक बार सबमिट करते हैं।
परफेक्ट आंसर। तो ये कोड हमारा सही है फ्रेंड्स। अब एक बार कोड देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है हमसे। सबसे पहले हमने चार चीज़ों को या तीन चीज़ों को इम्पोर्ट किया, दैट इज यूटिल डॉट एस्ट्रिक, आईओ डॉट एस्ट्रिक एंड लैंग डॉट एस्ट्रिक। क्लास बनाया हमने कोड शेफ, इसमें पी एस वी एम दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इस स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज करके हम इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा इनपुट में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो कि टी में स्टोर हो रहा है। सो आई एन टी टी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। उसके बाद वाइल टी माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो, जब तक टी माइनस माइनस की वैल्यू खत्म नहीं हो जाती, जीरो नहीं हो जाती, तब तक हम चार चीज़ें सबसे पहले तो इनपुट में लेंगे, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर। उसके बाद चेक करेंगे कि अगर हमारा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर की वैल्यू जीरो है, इसका ये मतलब है कि सारे रेफरी ने बताया है कि बॉल इज इनसाइड द लिमिट। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लेंगे इन, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन आउट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा शेफलैंड गेम्स। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो इसमें है फ्रेंड्स एक्सपर्ट सेटर प्रॉब्लम। A problem setter is said to be an expert if at least 50% of their problems are approved by chef. Munchie submitted X problems for the approval. If Y problems of these are approved, find whether Munchie is an expert or not. The first line will contain the integer t for the test cases. Each test case will have two values x and y. तो हमें बताना है फ्रेंड्स कि हमारा जो मंची है वो एक्सपर्ट है या नहीं है। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोड। अब इसको एक बार रन करते हैं। एक हमारा आउटपुट में इशू आ रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन होना चाहिए यहाँ पे, PRIN, PRIN।
ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको रन करते हैं। यस यस नो यस, यस यस नो यस, इसको सबमिट करते हैं एक बार फ्रेंड्स। परफेक्ट आंसर। ये कोड हमारा सही है फ्रेंड्स, एक बार कोड को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने तीन चीज़ें इंपोर्ट करनी है, दैट इज़ आईओ, यूटिल एंड लैंग। इसके बाद क्लास कोडशेफ बनाएंगे हम, उसमें पीएसवीएम यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट इन को इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने का सेंस मतलब है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई टी टी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, तो टी इज़ द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। जब तक टेस्ट केसेस खत्म नहीं हो जाते हम हर बार टेस्ट केस में एक वैल्यू इनपुट, दो वैल्यूज इनपुट करेंगे, एक एक्स और एक वाई। अगर वाई की वैल्यू एक्स प्लस वन बाई टू से बड़ी है, इसका मतलब कि हमारे ये अप्रूव्ड वाले हैं। तो अगर y की वैल्यू एक्स प्लस वन बाई टू से बड़ी है तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लेंगे येस, अदरवाइज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लेंगे नो। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक्सपर्ट सेटअप प्रोग्राम। आज का इस सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं। इन केस आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप वो ग्रुप पे शेयर कर देना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक्स।